Hello to all the students of MCOM first year. I am Professor Sonia Digwa. Today I welcome to all of you students in my YouTube channel. So in this lecture we have to study about our fourth subject which will be depended on for the A group student is income tax. In last lecture we have started our first chapter. This is your third lecture. You all may know in first lecture we have to study about the syllabus of income tax. In second lecture we have started the first chapter which will be depend on is the chapter name of first is concepts and definition. In concept and definition you have to study about the related concepts of income tax, what is the meaning of income tax, whether the income tax act will be formed, launched, and where the act has been formation. After the formation the act will be assembled for to provide and rules and regulation for the regulated purpose. So in last lecture we have started our first lecture. In last lecture we also discussed about the content you have to study in this chapter. There has been 9 contents you have to study in this first chapter. So we have discussed in last lecture. In last lecture we have also completed the concept are like to be in introduction about income tax, whether the income tax will be launched, what is the history of income tax, and why income tax is chargeable on which purpose. So income tax, we discussed that income tax will be charges on total income of that person, or if anyone who is liable to pay tax, that income will be charges as per the income tax act. The person who have earning an income, he was liable to pay taxes. Okay, so that is the meaning of income tax, and that tax he will be directly charged by the government of India. So in India the income tax act will be launched in 1961. In India the income tax will be launched in 1961. The act will be accepted by the India in 1961, and the formation of that act will be all the rules and regulation which have been followed according to the year of 1962 1st April. ओके, सो इनकम टैक्स एक्ट लॉन्च कब हुआ था 1961, बट एक्ट को फॉर्मेशन और एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन कब लॉन्च हुए थे इन द ईयर ऑफ 1st April 1962. इट ऑल्सो इंक्लूड इंडिया और जम्मू कश्मीर में भी इनकम टैक्स विल बी एप्लीकेबल. सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर. We have also discussed the amendment of income tax, whether the amendment of income tax will be formed in introduction. And second slide we have also discussed in last lecture, the tax will be divided into two categories, direct tax and indirect tax. Also discuss the meaning about of income tax, where in the year 1962 the income tax rules and regulation notification circulars will be launched, and that circular will be followed under the CBDT Act or Finance Act, and that act will provide an approval किसने provide करा था, about the central government or high court. Central court or high court, supreme court or high court will be providing acceptance of that कि that ये rules and regulation follow up करे जाएंगे whether the launchment of that act. Okay, so in last lecture we have also discussed about the meaning and the scope of income tax. We have discussed why the income tax will be most applicable for the purpose of whether be relating to the income and what income will be chargeable under the act. कौन कौन से इनकम चार्जेबल है, कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है. तो इस टैक्स के एक्ट के तहत ये सारी चीज़ों पे फोकस करा जाता है. इन सारे जो स्कोप, इन द सेंस स्कोप का एक कॉन्सेप्ट आपको रिलेटेड आई हैव डिस्कस. स्कोप इन सारे इनकम्स जो कैलकुलेट होती हैं इन द ईयर ऑफ इंडिया, और कौन कौन सी इनकम्स पे चार्ज करना है, चार्जेस कितना होगा, टैक्स कितना होगा, रेट कितना होगा, डिडक्शन अमाउंट कितना, अजम्पशन क्या है. अजम्पशन इज मीनिंग दैट इन द मराठी सेंस वी हैव सेड मुफ्त और फ्री, छूट. अजम्पशन का मतलब है छूट देना.
उन पर्टिकुलर आइटम्स पे, और वो इनकम टैक्स में चार्जेबल कौन कौन सी इनकम होंगी, कौन कौन सी इनकम टैक्स के अंतर्गत वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी। तो ये स्कोप इन सारी चीज़ों को ये एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कवर अप करता है। सो इन स्कोप वी हैव डिस्कस दैट काइंड ऑफ concept related. So income tax will be cover all that of concept in our scope is mentioned. There has been 15 scope we have discussed in last lecture. Now we move forward to our, in this lecture we have to discuss about the components of income tax law. Components of income tax law will be shown whether the formation of income tax, whether it can be formed as per the act, and what act will be initial for that. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे यानी कि इसमें 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 5 कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट्स विल बी इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ओके, तो इनकम टैक्स 1961 इंडिया ने एक्ट को एक्सेप्ट कब करा था, एस्टेब्लिश कब करा था, अप्रोच कब किया था, इन द ईयर ऑफ 1961। ओके, इन 1961 द इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश द इनकम टैक्स एक्ट। 1961 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को लॉन्च किया था। फिर इस एक्ट के तहत जो फाइनल एनुअल फाइनेंस एक्ट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, तब तक उन्होंने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करा इनकम टैक्स एक्ट ने। देन थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट में मेंशन है द इनकम टैक्स रूल्स। ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन 1961 में फॉर्मेशन होने के बाद इस एक्ट ने 1962 के अंतर्गत सारे रूल्स, नोटिफिकेशन, प्रोसीजर के, हाँ इनकम टैक्स को किन किन चीज़ों पे इनकम चार्ज होगी, टैक्स रेट कितना परसेंटेज चार्ज होगा, टोटल इनकम कितनी होगी, कितने परसेंटेज ऑफ रेट चार्ज होगा, कौन कौन सी इनकम्स के ऊपर टैक्स रेट चार्ज होगा अंडर सेक्शन, उनके सेक्शंस क्या थे होंगे। तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, इन द ईयर ऑफ 1962 के अंतर्गत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च हुए, सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर लॉन्च हुए इन 1962 के तहत। और ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर बाय द टेकिंग अ लीगल कंसिड्रेशन, लीगल डिसीजन लेने के बाद कोर्ट ने 1962 में ये रूल पास आउट किया कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट के, ये किसके तहत फॉलो अप करे जाएंगे, इन द एक्ट ऑफ 1961 में जो एक्ट लॉन्च हुआ, और 1962 के अंतर्गत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और जो भी डिटेल प्रोसीजर है इनकम टैक्स का वो लॉन्चेबल हुआ, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द इनकम डिडक्शन के रेट लॉन्च हुए इन द ईयर ऑफ 1962 के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें मेंशन है बाय द टेकिंग ऑफ लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। लीगल डिसीजन किसने लिया था, कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। सो इन कंपोनेंट द टोटल प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स के, हाँ इन कंपोनेंट्स हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि इनकम टैक्स किस तरीके से फॉर्म हुआ, इनकम टैक्स लॉ किस तरीके से फॉर्म हुआ, और किन किन चीज़ों से पर्पज से कब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेशन करें, और नोटिफिकेशन कब लॉन्चेबल, नोटिफिकेशन सर्कुलर में कौन कौन से कंटेंट मेंशंस हैं, एंड विच पार्टी हैव टेकिंग ए लीगल डिसीजन, उनके लीगल डिसीजन के बाद ही ये एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप होने लगे इन द कंट्री ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। Okay, in next slide we have discussed about the main concept is direct tax or indirect tax, difference between of direct taxes and indirect taxes. Okay, direct tax हम लोगों ने डिस्कस किया था। डायरेक्ट टैक्स विल बी दैट टैक्स विच कैन बी पर्सन हु डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट। ओके, इस डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन सी इनका पर्सन इंक्लूड होंगे, लाइक जो इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्न करते हैं, हेड्स ऑफ इनकम है, तो ये पर्सन क्या है, ये डायरेक्टली जो इनकी जो इनकम है जो जिससे अर्न करते हैं, लाइक सैलरी पर्सन है, इफ़ दे हैव अर्निंग एन इनकम तो वो डायरेक्टली टैक्स इसको पेड करेगा टू द गवर्नमेंट। और सैलरीड पर्सन हो, इफ़ दे हैव सैलरीड, इफ़ देयर हैव बिजनेस और प्रोफेशन है अगर किसी व्यक्ति का, तो वो डायरेक्टली टैक्स पेड किसको करेगा, गवर्नमेंट को। ओके, सो इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, जो पर्सन इन सारे रिसोर्सेज से इनकम अर्न करता है, द पर्सन हु हैव अर्निंग एंड इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम में कौन कौन से आएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो पर्सन है इन सारे रिसोर्सेज से इनकम अर्न करते हैं, सो दैट पर्सन विल बी डायरेक्टली एबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये पर्सन है जो डायरेक्टली पे करते हैं टैक्स। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स में यहाँ फर्स्ट मीनिंग में यही बताया गया है, द डायरेक्ट टैक्स इज रिफर्ड टू एज द टैक्स लिविड ऑन पर्सन इनकम वेल्थ एज दे पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो यही मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को डिस्कस किया है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है और परचेज और जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं शॉपकीपर्स। ओके, तो जो पर्टिकुलर पर्सन परचेज करता है तो उसके ऊपर वो कभी भी कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं आप पर्टिकुलर, तो उस गुड्स के आप चार्जेस पेड करते हैं, सर्विस के चार्जेस पेड करते हैं, तो वो कैलकुलेट क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट का इफ़ यू बाय अ पर्टिकुलर क्लोथ फ्रॉम अ शॉप, तो अभी जीएसटी लागू हुआ गया है पर्टिकुलर टैक्सेस पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ये है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो पर्सन परचेज करेगा अराउंड क्लोथ तो वो लाइबल रहेगा, उसको टैक्स पेड, पहले वैट टैक्स विल बी पेड बाय द कस्टमर। पहले कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने के लिए लाइक फूड आइटम्स है, काइंड आइटम्स, ऑल काइंड आइटम, क्लोथ्स हैं, तो इन एक्सेसरीज को परचेज करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को टैक्स पेड करना पड़ता था लाइक वैट, बट नाउ इट विल बी चार्जेस एज पर जीएसटी। ओके, तो इफ़ पर्टिकुलर पर्सन कोई प्रोडक्ट बाय करता है और उसके सर्विस पेड करता है उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर को करेगा या कस्टमर शॉपकीपर को करेगा सर्विस पेड, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स विल बी डायरेक्टली चार्ज टू द गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। डायरेक्ट टैक्स विल बी डायरेक्टली गोन थ्रू द government, or indirect tax will be gone to the indirectly to the government from the goods and service which the person can purchase of a particular product. Okay, so there will be a difference between direct or indirect tax. ओके, सो बर्डन सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? कंटेंट फर्स्ट मीनिंग हमने डिस्कस करी, सेकेंड विल बी द बर्डन। ओके, द पर्सन हु ऑन इट लिविड बियर्स टू बर्डन। ओके, शिफ्टेड बर्डन। अगर बर्डन में क्या डिस्कस करेंगे? डायरेक्ट टैक्स में क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, सैलरीड पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही पूरा बाहर रहेगा टू पे टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसके ऊपर रहेगा? डायरेक्टली शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का बर्डन पर्टिकुलरली पर्सन पे नहीं आता, टैक्स का बर्डन पर्टिकुलरली विल बी चार्जेड टू द शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। सो डायरेक्ट टैक्स में पर्सन के ऊपर पूरा बर्डन रहता है और इनडायरेक्ट टैक्स में पर्टिकुलरली सेकेंड पार्टी के ऊपर बर्डन रहता है फ्रॉम द टेकिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, सो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में क्या कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स और ड्यूटीज। ओके, सो ये है टाइप्स जो डायरेक्टली टैक्स पेड अप करते हैं। कौन कौन से डायरेक्टली टैक्स पेड किस किन पे चार्ज होगा? द वेल्थ ऑफ पर्टिकुलर इनकम, इनकम टैक्स जो असीसी पे करता है, इनकम टैक्स जो असीसी पेड अप करता है इन द ईच एंड एवरी ईयर, तो इनकम टैक्स है। और प्रॉपर्टी टैक्स किसी प्रॉपर्टी पे, हाउस प्रॉपर्टी जैसे हमने डिस्कस करा, द पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स विल बी चार्जेस ऑन द पर्सन इनकम अर्निंग पर्पस। ओके, सो इनकम जो पर्टिकुलर पर्सन अर्न करता है वो डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करता है। और पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स क्या कैलकुलेट करता है? कोई पर्सन गुड परचेज कर रहा है तो उनकी पर्टिकुलर इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी चार्जेबल। ओके, सो इनडायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? लाइक सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स विल बी नॉट इवन बी चार्ज। वैट टैक्स विल बी नॉट इन नाउ। तो वैट टैक्स पहले कैलकुलेट होता था एंड नाउ इट विल बी चार्जेस एज पर जीएसटी। इसमें जीएसटी पॉइंट मैंने मेंशन नहीं करा है, बट नाउ द वैट टैक्स विल बी नॉट चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर्स, वैट टैक्स विल बी नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाय बिटवीन द कस्टमर्स एंड शॉपकीपर, तो वो जो डायरेक्ट जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं अराउंड किसी के 20 रुपीज़ है, किसी के 100 रुपीज़ जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के
टैक्सेस में कैलकुलेट होते हैं। ओके, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं। इवेशन, टैक्स इवेशन विल बी पॉसिबल। टैक्स इवेशंस के अंतर्गत जो पॉलिसी डायरेक्टली पेड अप करेगा तो वो टैक्स इवेशन विल बी पॉसिबल। टैक्स इवेशन विल बी हार्डली पॉसिबल बिकॉज इट इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत टैक्स इवेशन विल बी हार्डली पॉसिबल। टैक्स इवेशन पॉसिबल नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, बट टैक्स इवेशन विल बी पॉसिबल इन द डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, एंड द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन घटना बढ़ना, चार्जेस अमाउंट इंक्रीज, घटना बढ़ना मतलब इंक्रीज होना अमाउंट के अंतर्गत, वैल्यू के अंतर्गत, टैक्स के अंतर्गत। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, हेल्प करता है रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स बिकॉज क्या है, पर्टिकुलरली असीसी को जितना टैक्स उसकी इनकम है उतने ही पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स में उसको पेड अप करना पड़ेगा, तो वो कम करता है असीसी को रेट हाई होने से, क्योंकि असीसी को कोई वो चार्जेबल नहीं होगा। द असीसी विल बी पेड ऑन द पर्टिकुलर देयर इनकम ओनली। तो इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स में रिड्यूस होगा, रेट बढ़ेगा घटेगा नहीं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों इन्फ्लेशन विल बी पॉसिबल, बिकॉज इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अमाउंट घटते बढ़ते रहते हैं, तो टैक्स उसी के बेसिस पे चार्जेबल होगा। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ना घटना, बढ़ना को इन्फ्लेशन बोलते हैं, रेट इंक्रीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इन्फ्लेशन विल बी पॉसिबल बिकॉज पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो असीसी जो पर्सन परचेज भी करता है प्रोडक्ट, सपोज आज अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट है 100 रुपीज़, तो वो आगे चल के नेक्स्ट ईयर में 120 भी हो सकता है, तो उसका चार्ज रेट टैक्स रेट विल बी इंक्रीज ऑन दैट। सो इनडायरेक्ट टैक्स में ये पर्टिकुलर चीज़ इंक्रीज हो सकती है इन्फ्लेशन है, बट इन डायरेक्ट टैक्स दिस विल बी नॉट इंक्रीजिंग, दिस विल बी कैलकुलेटिंग एज एन रिड्यूसिंग। लीविड ऑन टैक्सेस, लीविड ऑन टैक्सेस मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स किस किन पर्टिकुलर पार्टीज पे चार्जेबल होगा, ये मैंने आपको पर्टिकुलरली अभी बताया था। डायरेक्ट टैक्स विल बी चार्जेबल ऑन पर्टिकुलर पर्सन सैलरी। ओके, सो जो पर्सन सैलरी अर्न करते हैं उन वो लाइबल है पे करने के लिए। लिविड मतलब द पर्टिकुलर पर्सन विल बी लाइबल टू पे अ टैक्स। कौन है लाइबल जो पे करेगा डायरेक्ट टैक्स, कौन लाइबल है पे करने के लिए, बाय द पर्सन और इंडिविजुअल, HUF और FG ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी पेड अप करेंगी डायरेक्टली, कंपनी फर्म। तो ये पर्टिकुलर पार्टीज डायरेक्टली पेड करती हैं टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये जितनी भी पार्टीज हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेड अप करती हैं। एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी ओके। सो द कस्टमर जो है, कंज्यूमर इन द सेंस कस्टमर है जो टैक्स पेड करेगा ऑन द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस इफ दे हैव टेकिंग। ओके, नेचर, नेचर डायरेक्ट टैक्स का क्या है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में क्या है, पर्टिकुलर पार्टीज अपने टैक्सेबल पे करती हैं, तो वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है ईच एंड एवरी ईयर। ओके, तो इसका बहुत फ़ायदेमंद होता है विल बी द गवर्नमेंट को। एंड रिग्रेसिव है बिकॉज इट कैन बी change as per the time. Indirect taxes will be changed as per the year, as per the time duration. Okay, so this will be the difference between of direct and indirect tax. Move forward to the next slide. In next slide we have to discuss about the important definition और fundamental concept जो हमने हमारे कंटेंट में था, फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेटेड। तो फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे इस स्लाइड में सेक्शन एंड उनके टर्म्स मेंशन करे गए हैं कि इस सेक्शन के तहत ये इनकम चार्जेबल होंगी। ओके, इन फर्स्ट एग्रीकल्चर इनकम विल बी चार्जेस एज पर 2(1)(a). सेक्शन क्या है एग्रीकल्चर इनकम का, 2(1)(a). एंड द असेसी विल बी 2(7), असेसमेंट 2(8), assessment year 2(9), and previous year will be 3, and the person income will be 2, person section will be 231, income 224, and in India the income will be chargeable as per the act 225
सेक्शन पर सेक्शन ए। ओके, सो ये डेफिनेशन इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत आएंगी। फंडामेंटल राइट्स है जो इनकम पर्टिकुलरली चार्जेबल होंगी या नहीं होंगी इनकम टैक्स के तहत। ओके, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट है असीज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, ओके, द सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विल बी टू सब सेक्शन 1A। ओके, एग्रीकल्चर जो इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जस्ट लाइक जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो सेव करते हैं, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर यानी कि उपजाऊ एग्रीकल्चर, तो उनकी जो इनकम है, एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री इनकम है। और ये टैक्स फ्री इनकम है मतलब दैट इनकम विल बी अजम फ्रॉम टैक्सेस इन द इंडिया। तो ये एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एक अजम्प्ट इनकम है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये इनकम एग्रीकल्चर की जो इनकम है, पर्टिकुलरली जो होल्डर है एग्रीकल्चर इनकम का, तो दैट इनकम ऑफ दैट होल्डर, पर्टिकुलरली होल्डर विल बी टैक्स फ्री। तो उसकी जो इनकम है, उनकी इनकम पे एग्रीकल्चर की जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरिस्ट है, पर्सन है जो एग्रीकल्चरल में ये इनकम में अर्न करता है, तो उसकी इनकम पे टैक्स इंक्लूड चार्जेबल नहीं होता। ओके, अजम्प्ट का मतलब जो अजम्पशन अमाउंट है उनकी इनकम के ऊपर वो फ्री रहता है। अजम्प्ट का मतलब फ्री, छूट देना टैक्स के अंतर्गत। ओके, सो दिस इनकम विल बी, जो अगर इन एग्रीकल्चर से इनकम अर्न करते हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। एग्रीकल्चर इस पे टैक्स, एग्रीकल्चर पर्सन विल नॉट लाइबल टू पे टैक्स, will be liable to pay tax according to the section in India. The agricultural income earned by a taxpayer in India assumed under section 10(1) of the Income Tax Act 1961 के तहत जो एग्रीकल्चर की इनकम है, और वो एग्रीकल्चर इनकम है, वो जो टैक्स पेयर है एग्रीकल्चर का, जो पर्टिकुलरली टैक्स एग्रीकल्चर इसी उसे बोलेंगे। ओके, तो जो टैक्स पेयर इंडिया के तहत वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरिस्ट विल नॉट एबल टू पे अजम्प्ट अमाउंट। जो अजम्प्ट अमाउंट है वो डायरेक्टली छूट दी गई है एज पर द सेक्शन 10(1) 1961। एग्रीकल्चरल इनकम विल बी डिफाइंड एज पर द सेक्शन 2(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो एग्रीकल्चर इनकम इज द अजम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। ओके, so the person or agricultural income will be divided into 3 categories। 3 categories के अंतर्गत agricultural income will be will not be chargeable if an particularly rent or revenue derived from land situated in India used for agriculture purpose, they will be not even charge any kind of exempt tax as per the 1961 act in India। ओके, देन सेकेंड विल की इनकम फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम द बेनिफिट। अगर कोई प्रोसेसिंग में करा गया है, इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज पर द चार्जेबल ऑफ इनकम और काइंड्स और रेंडर। अगर कोई पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल ने परफॉर्म करा एक्टिविटी के एम्प्लॉयड है, कल्टिवेटर है, अगर किसी के पर्टिकुलरली एम्प्लॉय जो एग्रीकल्चर के पास यहाँ पे रहता है, एग्रीकल्चर इसके पास, तो वो दे हैव नॉट, और रिसीवर जो कल्टीवेटर, द परफॉर्मेंस ऑफ कल्टीवेटर जो यानी कि जमीन उपजाऊ करता है और रिसीवर करता रहे, और उस ज़मीन का उपजाऊ, जैसे कोई अनाज उपजाऊ करता है और उसको अनाज को वो जो किसान है या पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरिस्ट है उसको पे करता है मार्केट में, और जो उसका रेंट होता है अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड ऑफ कल्टीवेटर और रिसीवर का, तो वो रेंडर अमाउंट विल बी रिसीव बाय द मार्केट। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट किसके पास जाएगा, मार्केट के पास, बट उस पर टैक्सेबल चार्ज करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो टैक्स पेयर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। देयर कैन बी चार्जेबल टू द मुनीम, अगर वो चार्ज रेट टैक्स चार्ज भी करती हैं तो वो मुनीम से करती हैं। द सेल ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट, तो वो
पर्टिकुलरली जो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर है उनको सेल करते हैं, तो उनसे ही टैक्स कैलकुलेट करा जाता है, ना कि पर्टिकुलर जो ज़मीन किसान है उपजाऊ करता है उससे टैक्स से फ्री है, उनको एजम्पशन अमाउंट विल बी टैक्स फ्री रहता है। और इनकम में भी derived from any farm building required for agriculture operation, they cannot be liable to pay a tax according to the Constitution of India and according to the Income Tax Act 1961. So that is will be the agricultural income. Move forward to our next slide. In next slide, they have is mentioned the particular assessee. What is the meaning of assessee? Assessee का मतलब है particular person. Assessee will be in a simple way में assessee will be the particular person. एज पर सेक्शन, असीसी का सेक्शन क्या है? एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, असीसी मीन्स अ पर्सन हु विल बी लाइबल टू पे अ टैक्स और एनी अदर सम अमाउंट ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। असीसी क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है जो लाइबल है टैक्स पेड करने के अकॉर्डिंग टू द अमाउंट इन द सम ऑफ अकाउंट अमाउंट इंटरेस्ट पेड करेगा द पर्टिकुलर पर्सन हु हैव बीन पेबल लाइबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ इनकम टैक्स 1961. Okay, so assessee means are nothing but a person who will be liable to pay a tax in the form of money. Okay, तो assessee क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है जो लाइबल है टैक्स पे करने के, वो पर्टिकुलर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के अंतर्गत। अगर जितना पर्टिकुलर असीसी पे टैक्स चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट वो अपनी सैलरी में से पेड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और क्या पेनल्टी चार्जेस हैं इफ़ अगर वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे असीसी पेड अप नहीं कर पाया टैक्स, तो उनको पेनल्टी चार्जेस पेड करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो असीसी मतलब पर्सन, व्यक्ति जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ मेंशन किया गया है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under tax had been form of for the assessment of his income or fringe benefit of the income or any other person in respect of which he is assessable to determine loss sustained by him or such other person to determine the amount of refund due to him or such other person. ओके यहाँ पे मेंशन किया गया है एनी पर्सन हु विल बी लाइबल टू पे टैक्स, मतलब क्या है? जो उसकी पर्टिकुलर दिस ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है, उस इनकम को वो लाइबल ई सपोज उसने इनकम अपनी अर्न करी है पर्टिकुलर 1 ईयर्स की, तो उस 1 ईयर की इनकम उसने कितनी अर्न करी है उसके ऊपर, और अगर उसने कोई बेनिफिट्स ली है अपनी इनकम के अंतर्गत, उसे अपनी इनकम के अंतर्गत बेनिफिट्स मिली है, तो वो पर्टिकुलरली इनकम है लाइबल टू पे अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो और अदर पर्सन और रिफंड ड्यू जो उनके इनकम्स हैं वो पर्सन विल बी चार्जेबल टू पे टैक्सेस। ओके, सो दैट पर्सन विल बी कॉल असीसी। तो ये पर्सन को एवरी पर्सन इन जो पर्सन है जो अपनी पर्टिकुलर असिसमेंट इनकम है वो लाइबल टू पे और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट पर्टिकुलर असीसी ने ली है इन द असिसमेंट ईयर, ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स। और इस पर्सन को क्या कहा जाता है? इन द इनकम टैक्स के तहत असीसी। इन इनकम टैक्स दैट person every person will be who liable to pay tax will be called up by an assessee. Okay, second person or a person who will be deemed to be an assessee under the provision of this act. अगर कोई person कोई अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ ईयर एंड बाय 1 ईयर, सो दे कैन बी पर्सन विल बी लाइबल टू कॉल अप एज एन असीसी। उस पर्सन को भी असीसी कहा जाता है और वो पर्टिकुलर पर्सन भी under the provision of the income tax act will be payable to tax, paid up tax. Every person who will be deemed to be called as an assessee in a default under the provision of income tax act. Okay, every person, अगर कोई person who will be deemed, अगर कोई if a person will be deemed he will be liable to call up an assessee. So if a person will be deemed he will be कॉल अप एज एन असीसी। उस पर्टिकुलर पर्सन को असीसी कहा जाता है एंड
they can be chargeable or they can be liable to pay tax as per the provision of Income Tax Act 1961 के तहत वो liable है to pay a tax, और उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ असीसी इन इनकम टैक्स के अंतर्गत उस पर जो पर्सन चार्ज पे करता है टैक्स को, ओके, पर्टिकुलरली पर्सन व्यक्ति जो लाइबल है टैक्स पे करने के, उसको इनकम टैक्स के लैंग्वेज में असीसी कहा जाता है। पर्टिकुलर पर्सन को, व्यक्ति को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असीसी कहा जाता है। ओके, सो ये असीसी कॉन्सेप्ट विल बी डन। मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या है, 2 और सब सेक्शन विल बी 9। असेसमेंट ईयर का सेक्शन विल बी 2 एंड सब सेक्शन विल बी 9। असेसमेंट ईयर मीन्स एन ईयर विच कैन बी कॉल अप एज पर, यहाँ स्लाइड्स में मेंशन करने की हमने मेंशन किया है, बट इन अ सिंपल वे में आप लोगों को मेंशन करती हूँ। असेसमेंट ईयर विल बी, वी कॉल अप इन अ सिंपल वे विल बी करंट ईयर। असेसमेंट ईयर को क्या कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, करंट ईयर, और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। और ये ईयर स्टार्ट कब होता है, कब, ओके, पर्टिकुलर करंट ईयर स्टार्ट कब कैलकुलेट कर, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, 1 अप्रैल, और ये ईयर एंड कब होता है, 31 को। जस्ट लाइक 2019 1 अप्रैल को ये ईयर स्टार्ट हुआ था एंड 2020 31 मार्च को ये ईयर एंड हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एज एन असेसमेंट ईयर। ओके, सो दैट पर्टिकुलरली वो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट किस बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर असीसी। तो करंट ईयर किसको कहा जाता है, करंट ईयर विल बी चार्जेबल एज पर द प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर असीसी एज पर द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। ओके, previous year section will be section 3, previous year section will be 3. Okay, so previous year will be called up fully, will be income earned in next year will be called up as an, in the next year will be called up as an previous year. So previous year हम किसको बोलेंगे, the previous year we call up is as on 2018 preceding from असिसमेंट ईयर। जो असिसमेंट करंट असिसमेंट ईयर से पहले का साल होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्री असिसमेंट ईयर से जो पहले का साल होगा उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर अगर हम बोलेंगे 2018 और 19 को बोलेंगे, 18-19 को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और असिसमेंट ईयर 19-20। ओके, तो प्रीवियस ईयर विल बी 2018-19 and current year will be 2019-20. Okay, so there will be the difference between, this will be the difference between assessment year and previous year. Now we move forward to next. Hopefully all of you students will understand this concept also. Move forward to a next slide. In next slide we have say about the person who will be liable for to pay a taxes, and that person definition we will be discuss in our next section. और नेक्स्ट लेक्चर में अवर 4th हमारा जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे द पॉइंट्स about the concept of person will be charged, what person or which person who will be liable to pay tax according to the constitution of इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कौन कौन से पर्सन है लाइबल टू पे टैक्सेस, इस स्लाइड में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये कॉन्सेप्ट के डिटेल हम लोग वी हैव डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। इस सेशन के अंतर्गत हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट the components of income tax law. सेकेंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हमने डेफिनेशन देखी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। थर्ड विल बी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर सेक्शन इनकम टैक्स 1961 के तहत हमने इसमें 4
टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, 4 through 5 टर्म्स को हमने एक्सप्लेन कराया है. एग्री फर्स्ट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम, सेकेंड विल बी असीसी, थर्ड असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, एंड लास्टली हम लोग ये जो पर्सन है, जो कॉन्सेप्ट है इन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत द पर्सन हु विल बी लाइबल टू पे टैक्स. सो जो पर्सन है जो लाइबल टू पे टैक्स है, कौन कौन से पर्सन है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वी मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेक्चर. होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द concept related to that we have discussed on today's session. So thank you to all of you students. Hopefully you have to follow all the, for attendance you have to follow all the process or procedure I have been mentioned to you. Okay, so hopefully you like that lecture. Like this video, subscribe my channel, and goodbye to all of you students.